So guys, as you have watched my thumbnail, after that you can just have a look on my close-up look which I have curated today for the specific title of newlywed bride look guys. ये look का close-up आप देख लीजिए and इसका जो intro इसका मैंने in detail ending में बताया कि what all reasons I have kept in my mind to create this particular look guys. This is exactly a newly wed bride look, तो उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने वैसा ही कुछ लुक अचीव किया है एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दिस bindi and sindoor, and sindoors I have used one lipstick, and for bindi I've used eyeliner, a wet eyeliner. For the key point of this look is guys this tan brown, coffee brown, or you can say a kind of cappuccino brown lipstick with a copper cream metallics eyeshadow guys. Considering these two colors I have curated the entire look. For just to begin with my look guys, I'm just beginning up with my sunscreen from Neutrogena. I'm skipping toning and everything guys because I feel at times I should starting from this as well guys, because each and every video of mine has toning from TNW's rose water. After doing my sunscreen के बाद मैं Swiss Beauty का ये एक गोल्ड कलर का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई फील फॉर दिस लुक एक ग्लॉसी शीन ग्लोई लुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंसिडरिंग दैट इन माइंड मैंने ये एक ग्लोइश प्राइमर अप्लाई किया है फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड ट्रस्ट मी गाइस इट्स रियली वर्थ the money and everything guys. The reviews and everything are amazing. And after that I'm just going with a lighter coverage of my foundation. There is no foundation guys, this is a kind of BB cream, you can say that. And इसमें जो एक स्किन मॉलिक्यूल्स भी है जस्ट लाइक नाइसिनामाइड एक्सेट्रा, ये आपके स्किन को उस तरह से बेनिफिट भी करेगा प्लस आपको कवरेज भी देगा गाइस. सो मैंने बहुत ही लाइट कवरेज ये रखा है पूरे इस लुक में. मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अपने BB क्रीम को जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ एंड यू कैन डू इट विद योर फिंगर्स गाइस एंड नथिंग good than your fingers guys for doing your eye makeup or your skin makeup, but I'm just doing it through wet blender because I have it guys. मैंने इस लुक को पर्पसली गाइस बहुत ही लाइट कवरेज में रखा है बिकॉज आई फील एवरी टाइम यू डू नॉट नीड अ हैवी कवरेज बेस लाइक 3 to 4 layers of your foundation, concealer and your baking. At times you need light coverage but still glowy or presentable look. सो शादी के बाद अक्सर ऐसा होता है या ऐसा होता है बिकॉज ऑफ योर रियल हैप्पीनेस ऑफ योर रियल ग्लो, आप ग्लोई लगने लगते हो बिकॉज एक मोमेंट ही ऐसा होता है दैट यू ग्लो फ्रॉम विद इन गाइज. तो ये थोड़ा कम ही मैंने इसमें कवरेज रखा है, जस्ट अ मिनिमम काइंड ऑफ थिंग. एंड सनस्क्रीन मैंने इसमें स्किप नहीं किया है बिकॉज सनस्क्रीन एनी विच वेज और यू डोंट हैव टू मिस दैट पार्ट गाइज. आई एम रिकॉर्डिंग इट टुडे इन डिटेल बिकॉज अक्सर मेरे वीडियो थोड़े फास्ट में होते हैं लेकिन आज मैं थोड़ा स्लो में जा रही हूँ बिकॉज मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता है टू पुट द एग्जैक्ट डिटेल्स एवरी टाइम बिकॉज टाइम ही उसमें कम मिलता है वीडियोज़ में. आई एम डूइंग माई कंसीलर फ्रॉम मेबलिन आफ्टर डूइंग माई BB क्रीम के बाद मैंने कंसीलर अप्लाई किया है and concealer के बाद I am just going to repeat the same process of blending my concealer to my highlighted areas of my face guys, below my eyes, nose and my upper head. वहाँ पे मैं blend कर रही हूँ अच्छे से. If you have the brush you can use that as well guys. This is a kind of very guys very minimum a look जहाँ पे आपने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है बट स्टिल यू लुकिंग ब्यूटीफुल, वैसा कुछ लुक है गाइस. एंड जो भी है आगे इन प्रोसेस मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी. आई होप दैट यू गेटिंग माई कंसर्न अबाउट दिस लुक कि मैंने व्हाट ऑल पॉइंट आई हैव केप्टेड in my mind and curated this particular newlywed bridal look. Bridal में you can wear a very heavy bridal reception or anything, but after a marriage initially what you wear is this. So considering that ये look पूरा मैंने consider किया है and थोड़ा सी मैं setting कर रही हूँ with my compact from Maybelline again Fit Me range.
ये ब्रश से कर रही हूँ, आप इसके स्पंज से भी कर सकते हैं। एंड और ज़्यादा फील आने के लिए गाइस आई वॉर चूड़ा। नेक पे भी आपको अच्छे से करना है, नेक पे, ईयर्स पे, एवरीवेयर। ईयर्स पे। एंड अगर आप बहुत ही कम मेकअप कर रहे हैं गाइस, बट देर आर सर्टन थिंग्स which you need to highlight in your face features, and one of those features is your brows. You should never skip filling your brows guys, so that's what I'm doing it. I'm just doing it with my Maybelline brow pencil. You can see that ये एक मेरा ब्राउ का एक हेयर फॉल हो गया था जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। एंड मैं प्रीवियस वीडियोस में बोलती भी थी कि पेंसिल से मेरे ब्राउ फॉल्स हो रहे हैं, एंड ये एक लाइव एग्जांपल था जहाँ पे हो रहे थे। दिस इज़ अ क्रेयॉन फ्रॉम के ब्यूटी, ये कॉपर ब्राउन कलर में है। तो मैं इसे जस्ट डैपली ब्लेंड कर रही हूँ, देन एक फ्लैट ब्रश से उसे एक हल्का सा स्लाइटली शेप देने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़ा स्मजी करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट प्रिफर एनी हार्श लाइन्स फॉर माई मेकअप गाइस। सो ये कॉपर ब्राउन का, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था फॉर माई रेनी मानसून मेकअप ट्यूटोरियल में, कि इफ़ यू यूजिंग एनी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट सो दैट्स एक्सीलेंट फॉर मानसून, बिकॉज उससे आपका मेकअप ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, स्टैक ही रहता है। उसके बाद मैं सेम कॉपर ब्राउन का एक पिगमेंट पिकअप कर रही हूँ फ्रॉम हुदा ब्यूटी, और उसे उसी के ऊपर प्लेस कर रही हूँ गाइस फॉर बेटर आउटकम or for the longevity of my this look. You can do that. and मैं इसे हाथ से ही कर रही हूँ बिकॉज ब्रश से वो नहीं होता है। उसके बाद मैंने एक ब्राउ ब्रश लिया है फ्रॉम मास अगेन। ब्राउ ब्रश से मैंने हुदा का ही एक डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट पिकअप किया है, एंड मैं उसे स्मूथली एक लाइनर के तौर पे अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन यूज़ एनी ब्राउन कोल और ब्राउन पेंसिल इफ़ यू डू हैव। आई हैव इट, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी गाइज वो थोड़ी ड्राई हो चुकी है, तो मैंने शेडो यूज़ किया है फॉर दिस स्पेसिफिक लुक गाइज। एंड वन थिंग इज़ वेरी श्योर, इफ़ यू गोइंग विद अ ब्राउन कोल और brownish makeup, so for me guys black mascara will look wonders। तो उसी तरह से मैंने ये लुक में भी क्रिएट किया है कि मैंने ब्राउन लाइनर्स दिए हैं लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन पे, और मैं इसे ब्लैक मस्कारा से कॉम्प्लीमेंट करूँगी। तो जो एक ब्लैक की कमी है वो आपको नहीं फील होगी, बिकॉज आप वो ब्लैक से ही मस्कारा कर दोगे। तो ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन इज़ वाओ फॉर द आई मेकअप गाइस। सो वही है। तो लोअर लैश लाइन पे भी मैं उसी तरह से एक स्मजी सा काजल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द ब्रशेस गाइज। वन थिंग आई हैव नोटिस दैट गाइज, कि इफ़ यू आर इनटू मेकअप द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द गुड क्वालिटी ऑफ ब्रशेज़ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका ब्रश अच्छा नहीं होता है। तो प्रोडक्ट को पिकअप करने के लिए, उसे इवनली स्प्रेड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपका प्रोडक्ट भी हाई क्वालिटी पिगमेंटेड होना चाहिए, जहाँ पे आप थोड़ा सी पिकअप कर लो और आपका मेकअप हो जाए। और आपका ब्रश भी अच्छा होना चाहिए जिससे आपका इवनली प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है ऑल ओवर योर फेस। एट टाइम्स ब्रशेज़ ऐसे होते हैं कि आप प्रोडक्ट पिकअप करते हो लेकिन वो पूरा उड़ जाता है, वो डिपॉजिट नहीं होता है, उड़ जाता है आपका पाउडर बेस प्रोडक्ट। But I have noticed that guys, if you're using the good quality of brushes and good quality of all your base and makeup, तो वो एक बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में भी बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है। एंड दिस इज़ व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज़ रिसेंटली। आई एम, एज आई सेड बिफोर, मैं अभी मस्करा, ब्लैक मस्करा के साथ जा रही हूँ, एंड दिस मस्करा इज़ फ्रॉम मैक। ब्रशेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, गुड क्वालिटी ऑफ ब्रशेज़। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर डूइंग सो, तो आपको कंप्लेन नहीं आएगी, एंड यू कैन ईजिली नोटिस द चेंज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। लोअर लैश लाइन पे भी मैं इसमें कर रही हूँ आई लैशेज़ को, एंड देयर इज़ नो फॉल्स लैशेज़ आई हैव यूज्ड जस्ट टू फिनिश इट ओवर as my natural
post bridal look, or you can say newly wed bridal look. Lenses थोड़ी ग्रीनिश टोन में है, यू कैन नोटिस दैट. एंड ये ब्लश मैं अप्लाई कर रही हूँ. यू कैन नोटिस दैट गाइज, जो मैंने एक गुड क्वालिटी ऑफ ब्रश एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया था, एक थोड़ा सी लेने पे वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद माई मास ब्रशेस रिसेंटली. ब्लशेस अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सी भी नोज़ पे दे रही हूँ. देयर इज़ नो कंटूरिंग and there is no bronzing, just a blush and lipstick from Kalaba in the shade 78. And I'm just going to give a quick bindi from my liquid liner, and after doing so I'm just gonna apply sindoor from Maybelline lipstick guys. मैंने स्मच रखा है गाइज बिकॉज मुझे एक करीना कपूर का मैंने एक सिंदूर लुक देखा था, वहाँ पे शी वॉर अ फेडेड सिंदूर लुक, तो मुझे वही मेरे दिमाग में था, तो मुझे थोड़ा फेडेड सिंदूर लुक क्रिएट करना था, नॉट एग्जैक्टली डिपॉजिटिंग इन द मिडिल पार्टीशन. थोड़ा फेडेड मुझे चाहिए था, स्मच चाहिए था, तो वही मैं बस कर रही हूँ to achieve the exact look which Welcome I back saw. guys again to my very own YouTube channel. So today I have created a look for a newlywed bride guys. You can see as my look is resembles to a newlywed bride. I'm wearing this tika and followed by my sindoor. I'm wearing this chura to complement my look very well guys, because I have to look according in certain way to create a certain look guys. So this look is overall all about this tan brown lipstick, a cappuccino kind of lipstick and copper brown shadow. So I have used a KBT crayon. On top of that I have applied this Huda Beauty ka copper shimmer on that, and मैंने dark brown shade से liner और काजल create किया है. I have not applied any false lashes guys, just natural mascara से ही मैंने अपने eyelash को curl किया है, and just pink, light pink blush. And there is no contouring, no highlighting guys. There is no highlighter I have used, and this is a kind of very deep chocolate brown color. Considering these two colors in my mind guys, I have curated the entire video for a newlywed bride guys. newlywed bride को ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है. It's individuals personal choice, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं क्रिएट किया है. उनका जो उपटन हल्दी और जो भी चीज़ है उनका ही ग्लो नेचुरली इतना ज़्यादा आता है कि डोंट हैव टू अप्लाई मच बेस गाइज. एंड प्रैक्टिकली ऐसा होता भी नहीं है. यू हैव टू कैरी अ वेरी लेस मेकअप गाइज, स्टिल you need to look beautiful. That natural glows comes automatically after marriage guys. So I hope you have liked my video, and if you do, then please like, share and subscribe to my very own channel guys. As of now, Allah Hafiz.